Hello, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara. My topic for Environmental Chemistry, SEM 3rd, Unit 3rd, Soil Chemistry. In fertility management, next part is nutrient movement and uptake. Nutrients are absorbed by plants through roots, leaves and stem, but the major part by roots. न्यूट्रिएंट को हर तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा उसकी जड़ों के द्वारा ही होता है. प्लांट्स टेक कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन बाय लीव्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एंड एयर एंड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल वाटर. जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो दोनों तरीके से हो सकता है, एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा भी और सॉइल वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके द्वारा भी. नाइट्रोजन एज नाइट्रेट और अमोनियम आयन थ्रू रूट्स. नाइट्रोजन जनरली हम हमेशा प्लांट का जो होता है वो रूट इंटेक ही होता है, वो नाइट्रेट की फॉर्म में या अमोनियम की फॉर्म में होगा. एक्सेप्ट modulated legumes and non-symbiotic nitrogen fixing organism which can utilize molecular nitrogen from the atmosphere. लेकिन कुछ ऐसे legumes भी हैं जो कि directly atmospheric nitrogen का भी absorption कर सकते हैं. Soil is a reservoir for all mineral nutrient elements for plants. The supply mechanism comprises of transfer of nutrients across the interface of the soil and root into the cellular structure of plants. The absorption of iron takes place only when they come into contact with the roots. Thus, the two major processes involved are movement of nutrient ion from soil to root surface and absorption of by roots. न्यूट्रिएंट्स को जब आप सप्लाई करेंगे तो उनका अपटेक केवल एक ही प्रोसेस के द्वारा होगा कि सबसे पहले उन्हें रूट्स के कांटेक्ट में आना पड़ेगा और रूट्स के द्वारा उनको एब्जॉर्ब किया जाए. The three mechanisms proposed for control of nutrient ion with roots are diffusion, mass flow or contact exchange or root interception. The movement of ions takes place through diffusion and mass flow. A very small fraction of the nutrient in the soil solid phase is in equilibrium with those in the soil solution. As soon as the nutrient ions absorbed by roots, a diffusion pressure gradient is set up across the roots and the surrounding soil. As a result, nutrients ion move through the soil pores to the root surface. ये डिफ्यूजन प्रोसेस सबसे पहले चालू होगा. जैसे ही आपके न्यूट्रिएंट्स उसके कांटेक्ट में आते हैं वहां पर एक इक्विलिब्रियम प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और उस प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोइल पोर से रूट सरफेस तक पहुंचते हैं. मास फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट आयन along with irrigation or rainwater. As the water is absorbed by roots due to suction gradient, nutrients ion move with water. मास फ्लो में जब आपकी बारिश के साथ में न्यूट्रिएंट आयन होते या इरिगेशन के थ्रू वहां एक सक्शन ग्रेडियंट को क्रिएट किया जाता है और उसके थ्रू न्यूट्रिएंट आयंस मास फ्लो के द्वारा रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं. The third mechanism is contact exchange. The root tips are very active in nutrient absorption. As the root system develop and penetrate through soil, the root tips come in contact with fresh soil particles. Ion are also absorbed on them. The absorption is thus the result of ion exchange between the ions present in the soil and roots. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई भी प्लांट ग्रो करता है उसकी रूट्स भी ग्रो करती हैं और उसके साथ में वो नई सॉइल के संपर्क में आती है. नए सॉइल के संपर्क में आने पे उन पे नए आयंस के संपर्क में आती है और नए आयंस के संपर्क में आने के साथ ही उनके बीच में आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और उस आयन एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू उन न्यूट्रिएंट्स का इनटेक हो जाता है. द न्यूट्रिएंट्स आयन आर continuously removed from the system at one end soil and solid phase and accumulate on the other end plant phase.
मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें एक साइड से वो न्यूट्रिएंट आयन रिमूव होते हैं, मतलब वो सॉइल से रिमूव होंगे और वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब के लिए जाएंगे। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड रूट साइज, डेंसिटी एंड ग्रोथ, मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रूट टू जाइलम एंड द psychological condition of cortical and epidermical cells on the root। प्लांट फैक्टर्स भी कई सारे से हो सकते हैं कि रूट की साइज क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कितना है रूट्स के थ्रू, ये सारे प्लांट फैक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट अपटेक को बैलेंस करते हैं। द सॉइल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी आर pH per soil liming factor of acid soils, soil temperature, soil moisture, organic matter extra। सॉइल की पीएच भी एक ऑप्टिमम होनी चाहिए जिसे कि हम 6.5 से 7.5, मतलब ना तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा एल्कलाइन होनी चाहिए। इसी तरह से उसमें कैल्शियम साइड की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसकी लाइमिंग चालू हो जाती है। सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सॉइल में पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर और ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, तभी उसमें प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह हो पाएगी। थैंक यू।